ہیڈ لائنز آپ نے جانی، براہ راست آپ کو دکھائیں گے نون لیگ رہنما عطا تارڑ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مانیکا صاحبہ کے ساتھ ہے تو آپ نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ آپ کا ان کے گھر آنا جانا ہے، ان کا آپ کے گھر آنا جانا ہے، اور باقاعدہ آپ کا نکاح فرا گوگی کے گھر میں انجام پایا، اس کی تصاویر پوری قوم نے دیکھی کہ آپ کے ذاتی مراسم فرا گوگی کے ساتھ پہلے سے استوار تھے، اور آپ نے ان کو بھرپور موقع دیا کہ وہ پنجاب میں سیاہ کریں سفید کریں، ہر چیز کا مالک آپ نے فرا گوگی کو پنجاب میں بنایا۔ اور یہ جو 32 کروڑ روپیہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے تحت وفاقی حکومت نے جس کی منظوری دی، تو یہ بتایا جائے کہ یہ 32 کروڑ روپیہ 2019 میں جو آپ نے ان کو یہ سہولت دی ہے، کیا یہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ سہولت میسر تھی؟ اور آپ نے یہ این آر او دیا، آپ وزیر اعظم تھے، عثمان خان بزدار وزیر اعلیٰ تھے، آپ کے اقتدار میں ہوتے ہوئے یہ این آر او ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے تحت 32 کروڑ کا دیا گیا۔ اور ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم میں یہ فرا گوگی کیوں گئی؟ کیونکہ اس 32 کروڑ روپیہ جو ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے تحت عمران خان صاحب کی اجازت سے منظور کیا گیا، اس کا سورس کوئی نہیں تھا۔ یعنی فرا گوگی صاحبہ کے پاس کسی قسم کی منی ٹریل نہیں تھی اس 32 کروڑ کی، جو 2019 میں عمران خان صاحب نے اپنی وفاقی حکومت کے تحت، اپنی ہی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے تحت ان کو یہ رعایت اور سہولت فراہم کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گوگی بچاؤ تحریک اور گوگی بچاؤ مارچ پر آپ نکلے ہیں، اس میں کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہے، اس میں مقامی سازش ضرور ہے۔ اور مقامی سازش یہ ہے کہ ایک ایسے وزیر اعلیٰ کو بٹھایا گیا جس نے کہا کہ ہیئر نو ایول، سی نو ایول، اسپیک نو ایول۔ وہ نہ کچھ دیکھتے تھے، نہ کچھ بولتے تھے، نہ کچھ سنتے تھے۔ اور عثمان بزدار کا میرٹ کیا تھا؟ کیا وہ تحریک انصاف کے کوئی دیرینہ کارکن تھے؟ کیا انہوں نے ماضی میں صوبے کے لیے ایسی خدمات دی تھیں جن کی بنا پہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور ان کی سروسز کو ریکگنائز کیا؟ یہ قطعاً مقصد نہیں تھا۔ یہ ساری سازش اس کے تانے بانے بنی گالا سے ملتے ہیں کہ فرا گوگی نے یہ ساری سازش بنائی کہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ لگایا جائے جس کا اختیار کوئی نہ ہو، جس کے پاس فہم و فراست نہ ہو، جس کے پاس اتنی عقل نہ ہو کہ وہ ان کی سیاہ کاریوں کو، ان کی کرپشن کو روک سکے۔ تو یہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم جو 2019 میں دی ہے، یہ پہلا این آر او ہے جو فرا گوگی کو عمران خان نے بطور وزیر اعظم دیا۔ اور کیوں دیا؟ اس لیے کہ فرا گوگی عمران خان صاحب کی بے نامی ہے۔ اور یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ فرا گوگی کے ٹوٹل اثاثے 21 کروڑ روپے کے تھے جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے ہیں، اور اس سال مارچ تک ان کے اثاثوں کی مالیت 85 کروڑ روپے ہے۔ کوئی ایسا بزنس ہے کہ جس کے تحت آپ جب حکومت میں نہ ہو تو آپ کے اثاثوں میں کمی واقع ہو رہی ہو، اور جیسے ہی آپ حکومت میں آئیں وہ آپ کو 60 کروڑ کا منافع ہو جائے؟ اور یہ صرف وہ رقم ہے جو 43 سسپیشس ٹرانزیکشنز کے تحت فرا گوگی کے 15 اکاؤنٹوں کے اندر آئی۔ یہ 43 مشکوک بینک ٹرانزیکشنز ہیں، 43، جس کے تحت یہ 85 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریباً 70 کروڑ روپیہ ہے جو کیش کی شکل میں آیا ہے، کیش ڈپازٹس ہیں
اور یہ کیش ڈپازٹس کس مد میں آئے؟ اور یہ جب این آر او دیا گیا ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے تحت 32 کروڑ کا، تو اس کے بعد کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ تمہیں میں نے 32 کروڑ کا، عمران خان صاحب نے کہا ہوگا فرا گوگی کو کہ میں نے 32 کروڑ روپیہ تمہارا بلیک منی وائٹ کر دیا ہے، تمہاری مرضی کا ایک ڈمی وزیر اعلیٰ پنجاب میں پلیس کر دیا ہے، اب تمہیں پورا اختیار ہے، تم افسروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرو، تم رنگ روڈ کی الائنمنٹ اپنی مرضی کے مطابق طے کرو۔ اور یہ کرتے کیا تھے؟ کوئی بھی سڑک بننی ہے، رنگ روڈ بننی ہے، یہ اس کی منظوری دلوانے سے پہلے اربوں روپے کی اراضی وہاں خریدتے تھے۔ کئی 100 ایکڑ اراضی کا ریکارڈ موجود ہے کہ جہاں پہ رنگ روڈ کی الائنمنٹ طے ہوئی، کوئی بڑی سڑک کا منصوبہ منظور ہوا، آپ نے ساتھ ہی وہاں پہ پہلے سے ہی زمین کی خریداری شروع کر دی، تاکہ جو زمین سستی خریدی، جیسے ہی سڑک کا منصوبہ منظور ہوگا اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہوگا۔ یہ کرپشن کے 2-4 طریقے تھے۔ پہلی کرپشن کی ٹیکس ایمنیسٹی کے تحت، دوسری کرپشن کی پوسٹنگ ٹرانسفر کروا کر، ٹھیکے داروں سے کمیشنز لے کر، جن کو آپ نے عوامی منصوبوں میں فیور کر کے آؤٹ آف ٹرن ٹھیکے ایوارڈ کیے۔ تو یہ جو 85 کروڑ روپیہ ہے، کیا عمران خان صاحب کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ 85 کروڑ روپے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ 43 بینک ٹرانزیکشنز ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ اور کیا ان کو علم نہیں تھا کہ کئی 100 کروڑ اکاؤنٹوں میں آ رہا ہے کیش کی شکل میں، اور وہاں سے کیش کی شکل میں وڈرا کر کے استعمال ہو رہا ہے؟ ابھی شواہد آ رہے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو کیش آیا اور کیش نکلا، یہ عمران خان صاحب کو گیا۔ میں پچھلے 3.5 سال سے پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا کاروبار کیا ہے، عمران خان صاحب کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، کچن کا خرچہ نہیں چلتا، تنخواہ پہ وہ گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا شہانہ طرز زندگی، یہ ٹھاٹ باٹ، 400 کنال کا محل، اس کو مینٹین کیسے کرتے ہیں؟ اب سمجھ آئی کہ فرا گوگی نے جو کرپشن کے یہاں انبار لگائے، جو یہ 85 کروڑ روپیہ کمایا صرف ایک یہ بینک ٹرانزیکشنز کے ذریعے، 43 بینک ٹرانزیکشنز کے ذریعے، وہ اپنی جگہ پر، مگر جو اربوں روپے کی اراضی خریدی گئی، اور گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت، یعنی گورنمنٹ ایک پالیسی بنا رہی ہے کہ عوامی منصوبہ یہاں سے گزرے گا، اس سے پہلے زمین خرید لیں۔ اور یہ دیکھیے ہمارے پاس جو تفصیلات آئی ہیں، 50 کروڑ روپیہ یہ پے آرڈرز کے ذریعے نکلوایا گیا ہے اکاؤنٹوں سے۔ اور نہ صرف یہ جتنے یہ غوثیہ بلڈرز کا اس میں نام ہے، جن کو پیمنٹ کی گئی ہے 8-10 کروڑ روپے کی، تو یہ کیا عمران خان صاحب بالکل نہیں دیکھ رہے تھے؟ بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہے فرا گوگی سے؟ اگر نہیں ہے تعلق تو عمران خان صاحب کا نکاح اور ان کی شادی کی تقریب فرا گوگی کے گھر پہ کیوں منعقد ہوئی؟ اور عمران خان صاحب نے اتنی کھلی چھوٹ کیوں دی کہ پنجاب کے اندر سرکاری ٹھیکوں میں، افسران کی پوسٹنگ ٹرانسفرز میں فرا گوگی آل ان آل تھی؟ فرا گوگی نے پنجاب پہ حکمرانی کی عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ اور یہ آگے بڑھیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان شہباز گل کی گاڑی کو مبینہ طور پر ٹکر ماری گئی، گاڑی الٹ کر تباہ ہو گئی۔ شہباز گل موزانہ طور پر محفوظ رہے۔ پی ٹی آئی رہنما لاہور سے اسلام آباد آ رہے تھے کہ عقب سے آنے والی گاڑی نے مبینہ طور پر ٹکر ماری، گاڑی موٹر وے پر لگے ڈیوائیڈر سے ٹکرائی اور پھر الٹ گئی۔ حادثے کے بعد اے آئی وائی نیوز کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے شہباز گل نے بتایا کہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی سے ٹکر ماری گئی ہے، ایک گاڑی کافی دور سے تعاقب کر رہی تھی۔ ٹویٹر پیغام میں شہباز گل بولے کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کروانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے مولا اور قوم کی دعاؤں کی وجہ سے زندہ ہوں۔ میں نے کل ہی کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں قتل کروا دیں گے، کروا لیں، غداری نہیں کروں گا۔
खान के साथ खड़ा था, खड़ा रहूँगा। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं अभी तक मौसूल हुई शहबाज गिल से मुतालिक? खैरियत से हैं, कहाँ पर हैं, और उन्होंने अभी कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने का सोचा? देखिए, जिस नौयत का हादसा था, गाड़ी को देखकर लग रहा था कि शायद बहुत शदीद किस्म की चोटें आई होंगी, लेकिन शहबाज गिल की ताज़ा तरीन तस्वीर देखकर लग रहा है कि वो खैरियत से हैं और कोई बहुत ज़्यादा चोटें उन्हें नहीं आई। ताहम हादसा सवेर किस्म का था। मोटरवे पुलिस ने भी उसकी तहकीकात शुरू कर दी हैं, लेकिन तशवीश इस बात पर है, ज़्यादातर जो पीटीआई के अपने लोग हैं, जो शहबाज गिल के साथी हैं, उनको ये लगता है कि ये हादसा कोई सोचा समझी मनसूबाबंदी के तहत हुआ, क्योंकि जिस गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी वो काफ़ी देर से उनका ताक़ुब कर रही थी। अब वो गाड़ी इस वक्त कहाँ है, मोटरवे पुलिस इस बारे में भी तहकीकात कर रही हैं। हुकाम का कहना है कि गाड़ी में 4 अफराद सवार थे जिन्हें मामूली चोटें आई हैं और इब्तदाई तहकीकात इस हवाले से मुकम्मल कर ली गई हैं। ये हादसा मोटरवे M2 खान का डोगरा तहसील सफदराबाद जिला शेखुपुरा के करीब पेश आया, जब शहबाज गिल लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे थे। बाकी जो पार्टी की आदत है, उन्होंने भी इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने भी शहबाज गिल से रब्ता करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। ताहम इस हवाले से अभी मजीद तहकीकात जारी है। ठीक है, मज़ीद तहकीकात जारी हैं। शहबाज गिल ने ट्वीट भी किया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुझ पर कातलाना हमला करने वालों को बताना चाहता हूं कि कौम मेरे साथ है और कौम की दुआओं की वजह से ज़िंदा हूं। उन्होंने कहा कि काफ़ी देर से मोटरवे पर जब सफ़र कर रहा था तो एक गाड़ी ताक़ुब कर रही थी और उसने टक्कर मारी। मौजाना तौर पर महफूज रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझ पर कातलाना हमला किया है उनको बताना चाहता हूँ कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ और इमरान खान से गद्दारी नहीं करूँगा। गवर्नर पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने कहा, जस्टिस जवाद एहसन ने गलत और गैर आइनी फैसला दिया। अदालतों से गलत बयानी करके फैसले लिए गए। गवर्नर हाउस को यरगमाल बनाकर गैर कानूनी हलफ बर्दारी की गई। गवर्नर हाउस में सिक्योरिटी के लिए 10 माली थे। इलाके के SHO से चीफ जस्टिस तक से अपील की। आर्मी चीफ से कहा कि कप्तान और कंपनी दे दें। सदर और आर्मी चीफ से मुलाकातों में तमाम बातें रखूंगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त यरगमाल हुआ। इन वारदातियों ने अदलिया को धोखा देके गलत फैसला करवा लिया। जस्टिस जवाद हसन साहब के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बतौर गवर्नर पंजाब में इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा। एक गैर आईनी बंदा गैर आईनी फैसला लेके अदालत से स्पीकर उसका हलफ ले रहा है। होस्टेज बनाया गवर्नर हाउस। सिक्योरिटी के लिए मैंने अपने स्टाफ से पूछा कि हमारे पास सिर्फ 10 माली हैं। मैंने SHO से लेके चीफ जस्टिस सबको कहा कि ये क्या बदमाशी हो। जिसके पास ताकत है उससे मैंने ताकत के लिए रिक्वेस्ट की। आर्मी चीफ से, जनाब आप और पूछी तो मुझे कम से कम एक कंपनी या एक कप्तान की डिमांड तो करोगे, इतने फौजी तो दें। और कल मैं सदर पाकिस्तान से मिल रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो मैं आर्मी चीफ से मुलाकात होगी डेफिनेटली उनके सामने रखूँगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पानी की शदीद किल्लत है। शहरी सड़कों पर निकल आए। ठट्ठा में कौमी शाहराह पर धरना, मुजाहिरीन की नारेबाजी। कहा नहरें सूखी पड़ी हैं, पीने का पानी नापैद है। पानी न होने से फसलें सूख गई हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने विफाक से सूबे को हिस्से का पानी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। शर्जील मेमन कहते हैं सूबे में आबपाशी के साथ पीने के पानी की शदीद कमी है। विफाकी हुकूमत नोटिस ले। सिंध ज़रई मईशत में अहम किरदार है। मुल्की मईशत पहले ही मुश्किलात का शिकार है, मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। चार के खिलाफ गालाए तो पानी के खिलाफ गालाए तो उनते इंसान में कूड़ियों में प्यारियों कट हर शहर में मंचार जा गुदाम हो के गुदाम आए जो कारोबारी मारो। कराची में 2 नौजवानों के डूबने के बावजूद सी व्यू पर लोगों का रश। मन चले समंदर में नहाते रहे, कोई लाइफ गार्ड है न रोक टोक। आसिफ खान रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में सी व्यू पर नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई, जबकि दूसरे नौजवान दानियाल की तलाश का अमल जारी है। ढूंढ के एक मिल गया था, दूसरा नहीं मिला अभी तक। सी व्यू पर होने वाले हादसे के बाद भी इंतजामिया के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। लोगों की बड़ी तादाद ने तफरीह के लिए समंदर का रुख किया, जहाँ शहरियों को आगे जाने से रोकने वाला कोई नहीं और न ही इतराफ में कोई लाइफ गार्ड तैनात किए गए। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए थे? नहीं, ये तो नहीं। अच्छा। ये कब का वाक़या है? ये कल का वाक़या है। तो मतलब यहाँ पे किसी ने आपको कोई नहीं रोका? नहीं, हम तो अभी आए, कल तो नहीं आए। कुल नहाए तुम अंदर? जी, अभी कितने पानी में नहाए हो? इतने पानी में नहाए। इतने पानी में? तो किसी ने रोका वगैरह नहीं तुम्हें? नहीं, कम पानी है, फिर भी हौसबे से कम है पानी। हम तो हौसबे में नहाए हैं फिर भी।
कराची के समंदर में पिकनिक मनाते हुए डूबने का ये पहला वाकया नहीं, माजी में भी इस तरह के वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। कराची के साहिल समंदर पर होने वाले हादसे के बाद भी यहाँ नहाने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की गई, जिसकी वजह से मजीद कोई हादसा रोनुमा हो सकता है। कैमरामैन काशिफ निज़ामी के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। भारत में जुल्म की इंतहा, इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार लड़की से थाने में फिर ज़्यादती। उत्तर प्रदेश के एक शहर में 13 साल की लड़की इज्तिमाई ज़्यादती की शिकायत करने गई। पुलिस स्टेशन में थानेदार ने शिकायत दर्ज करने के बजाय ज़्यादती का निशाना बनाया। पूरे भारत में सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ हंगामा खड़ा हो गया। भारतीय हुकूमत और पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। हुकाम ने अभी तक थानेदार को सिर्फ मुअत्तल किया है। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। हुकूमत का बैरूनी साजिशी तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं टर्म्स एंड रेफरेंस आइंदा काबीना इजलास में रखे जाएंगे। कमीशन सरबराह ऐसे शख्स को मुकर्रर किया जाएगा जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। फवाद चौधरी और शीर मज़ारी को शर्म आनी चाहिए, अपनी हुकूमत के कारनामों को ट्वीट करके मौजूदा हुकूमत से जोड़ रहे हैं। बैरूनी मुल्क साजिश ड्रामा है, इसके असल किरदार इमरान खान साहब। सुबह दोपहर शाम माशा लगाया हुआ है, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया। इंक्वायरी कमीशन गैर जानिबदार होगा। तमाम इंक्वायरी अवाम के सामने की जाएगी ताकि पता चल सके मुल्क दुश्मन इमरान खान झूठी सियासत के लिए, फरागोगी बचाओ तहरीक के लिए इस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वो रिपोर्ट है जो 21 अक्टूबर 2021 में आई थी, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान फाइनल हो गया अग्रीमेंट। अपनी ही हुकूमत की रिपोर्ट को ट्वीट करके शीरी मज़ारी साहिबा और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम आज शहबाज शरीफ को ऐसे मुआहदों पर दस्तखत नहीं करने देंगे। कुछ तो शर्म करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साजिशी मरासले पर हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं PTI सिर्फ आज़ाद अदलिया के तहत कमीशन को तस्लीम करेगी जो ओपन समाअत करे। जो काम अदलिया ने नहीं किया अब वो अवाम ने अपने हाथों में ले लिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत के पास सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं। लाखों लोग इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। PTI रहनुमा ने हुकूमत को खबरदार किया फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाएं, ऐसा न हो लोग ऐवानों के अंदर और आप बाहर हों। तहरीके इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी, आज़ाद अदलिया के तहत जो ओपन हियरिंग करे। एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद साजिश शुरू हुई। इमरान खान को वज़ारते उज़्मा से अलहदा करने पर साजिश मुकम्मल हुई। जो TORs काबीना ने दिए हैं उसी के ऊपर इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान को खत लिखा है। अदालतों को अगर ये इन्वेस्टिगेट नहीं करना तो इससे बड़ा और क्या काम होगा। अदालतें 24 घंटे नहीं, अगर 1 घंटा भी खुले तो उन्हें ये काम सबसे अहम तरीके से करना चाहिए। अवाम ने इस काम को अब अपने हाथ में ले लिया। 20 के बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी। लाखों लोग इस्लामाबाद में निकलेंगे। वोटेड हुकूमत के आखिरी चंद हफ्ते हैं। आप इंतखाबात की तरफ चले जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे फिर आपकी मर्जी है। हो सकता है लोग ऐवानों के अंदर बैठे और आपको धूप में बैठना पड़े। इमरान खान साहब भी जब गए हैं, प्रोटोकॉल और जो प्रोसीजर्स हैं उनको वो गाड़ी मिली, वो गाड़ी हम वापस कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इमरान खान के होम ग्राउंड मियांवाली में सियासी मैदान सजाएगी। जलसे से पहले इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा करप्ट तरीन लोगों की इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। करप्ट लोगों की गुलामी से निकलने के लिए इस्लामाबाद की कॉल दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाला PTI का कारकुन 3 बच्चों के साथ पैदल बनीगाला रवाना हो गया। अपने खान से इजहार यकजहती की खातिर मैं मर्दान से अपने बच्चों समेत पैदल बनीगाला जाने के लिए निकल चुका हूँ। हमारे निकलने का मकसद और मतलब यही है कि हम बेकारी कौम नहीं है, हम खुददार कौम है। हम अमरीकी ग़ुलामी को और इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। खान साहब आप कदम बढ़ाए, पाकिस्तानी कौम का एक एक बच्चा आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर जान देने को तैयार है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में ईद का तीसरा दिन और सब ने इस वक्त भरपूर तरीके से ईद को एंजॉय करने के लिए, तफरीह करने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया है और मज़े मज़े के पकवान से भी लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा रहा है।
साथ में बच्चा पार्टी खास तौर पर बाहर निकली है पार्क्स में अपनी ईदी खर्च करने। इस हवाले से मजीद बताएंगी रुबीना अलवी। जी रुबीना। हम इस वक्त मौजूद हैं फेयर हॉल में, जहां पर ईद के तीसरे रोज लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। जिस तरह से अब ये एक लॉन्ग वीकेंड ही है, क्योंकि अब बीच में हफ्ता और इतवार भी आने वाला है, तो यूँ समझ लीजिए कि हफ्ते भर ईद चलने वाली है। और 4 साल के बाद हम सब कज़िन्स निकले हैं, घूमा फिरा, तस्वीरें बनाई। जो जंपिंग कैसल है और जो झूले वगैरह हैं उसमें बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। लोग जो हैं वो गहमा गहमी के साथ ईद पुरजोश तरीके से मना रहे हैं और दोस्त अहबाब के साथ भी रात गए तक बाहर खाना खाने का भी प्रोग्राम है। जी, मीठी ईद का मज़ा मीठे के बगैर तो अधूरा है। ईद के तीसरे रोज़ पाकपतन में देसी घी से तैयार करदा मिठाई तोशा खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन की मशहूर सौगात देसी घी से तैयार करदा तोशा, जिसे देखते ही मुंह में पानी भर आए। ईद के मौका पर शहरी अपने दोस्तों को तोशा तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं। लेने आए हैं, ये देसी घी से तैयार होता है और ये हम अपने दोस्तों को गिफ्ट करते हैं। उनका बहुत आला मेयार है और ये पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तोशा की तैयारी में मैदा, खोया और देसी घी का इस्तेमाल किया गया। फिर इसको मीठा बनाने के लिए शीरे में डुबोया जाता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।